السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر نوید اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں 72 نیوز۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں یہاں کی بہت ہی مشہور و معروف ہستی، خاص طور پہ جمالی خاندان کی جو خدمات ہیں پاکستان کے لیے بہت ہی زیادہ ہیں، اور اس وقت جس ہستی سے میں آپ کو ملانے جا رہا ہوں وہ میر جعفر خان جمالی صاحب، جو کہ قائد اعظم کے ساتھ جنہوں نے کام کیا، ان کے گرینڈ سن ہیں میر چنگیز خان جمالی صاحب، جو کہ فیڈرل منسٹر پیپلز پارٹی کے دور میں رہ چکے ہیں، خاص طور پہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، راجہ پرویز اشرف بھی اس دور میں بنے، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کرونا کے حوالے سے خاص طور پر اس وقت جو SOPs پر عمل ہو رہا ہے، اور کرونا ہے کیا اس حوالے سے، اور خاص طور پہ یہاں پہ یہ بہت بڑے لینڈ لارڈ ہیں، ذمہ دار ہیں، اور اس کے مسائل کے حوالے سے حکومت سندھ، حکومت پاکستان اس پہ، حکومت بلوچستان کتنے عمل کروا رہی ہے، اور خاص طور پہ مہنگائی کا ایشو جو اس وقت چل رہا ہے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں میر چنگیز خان جمالی صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ خیریت سے جناب، آپ کا؟ سر پاکستان میں جمالی خاندان کی بہت ساری خدمات ہیں، خاص طور پہ پاکستان بنانے میں، جی جی، اور آپ ماشاءاللہ گرینڈ سن ہیں قائد ملت میر جعفر خان جمالی صاحب کے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کے دادا جان نے کیا کیا پاکستان کے لیے قائد اعظم کے ساتھ؟ سب سے پہلے تو ہم یہ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے پورے چینل کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں بلوچستان آئے، کشمیر کوٹ رجحان جمالی میں، تو میں تو پہلے آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا اور آپ کے چینل کا، آپ کی ٹیم کا۔ تھینک یو سر۔ ماشاءاللہ جی، بزرگوں کا نام میر جعفر خان جمالی فدائے ملت، انہوں کا جو رول رہا پاکستان بنانے میں، ان کی جو دوستی ہوئی محمد علی جناح قائد اعظم کے ساتھ، وہ ہمارے 30s میں وکیل تھے، تو اس زمانے میں زمینوں کا کیس جیتا، تو وہ دوستی جو ہے ایک سیاسی اس میں بھی پلیٹ فارم بن گیا، اور انہوں نے بلوچستان کے خانقلات سے لے کے کا بھی رول ادا کیا تھا ان کو پاکستان میں شامل کرانے کے لیے، اور ساتھ ساتھ وہ سندھ اسمبلی کے بھی ممبر رہے، اس وقت کی مسلم لیگ کے ان کے ساتھ رہے، اور یہاں 38 سے انہوں نے مسلم لیگ کا کام شروع کرایا، اور سب سے بڑا جو ہے ان کا جو میں سمجھتا ہوں کام ہے وہ ہے ایجوکیشن ان آل سینس، کہ یہ نہیں ہے کہ صرف تعلیم بڑے لوگوں نے یا بڑے لوگوں کا کرنا، نہیں، غریب کے بھی بچے نے پڑھنا ہے، ایجوکیشن فار آل۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہر قسم کی تعلیمات دینا، قبائلی حساب سے، سیاسی حساب سے، انسانیت کا ناطہ، اخلاقیات، اس قسم کے جو چیزیں تھیں وہ میر جعفر خان اور ان کے ساتھ جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے یہ اس علاقے کو، اس خطے کو دیا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں آزاد پاکستان دیا۔ اچھا سر، یہ آپ نے بڑی ایک اچھی بات کہی کہ قائد اعظم صاحب قائد ملت میر جعفر خان جمالی صاحب کے لائر تھے، جی جی، یعنی کہ 30s میں، 30s میں آپ کے کیس وغیرہ جو ہے نا جی جی، وہ زمینوں لڑتے کے رہے۔ کیس وہی ہے، وہاں سے ان کی دوستی بھی بڑی اور جی پھر آگے سیاسی ماحول بھی بنتا گیا۔ صحیح۔ اس وقت سر سب سے مین ایشو کو تیسرا خاص طور پہ لہر آئی ہوئی ہے کرونا کی۔ جی جی کرونا کی وجہ سے ہماری ملک کی معیشت تو آپ کو پتہ ہے، آپ فیڈرل منسٹر بھی رہ چکے ہیں، کہ بہت زیادہ ڈاؤن جا رہی ہے، لیکن کرونا کے آنے کی وجہ سے کچھ اور زیادہ ڈاؤن ہوگی۔ آپ کرونا کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو ابھی قدرتی آفت ہے یا پیدا کردہ آفت ہے یا جس طرح بھی ہے، لیکن اب فی الحال دنیا میں اس وقت اس کا اثر بہت ہے۔ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے حالات کافی بہتر ہیں، اور خصوصاً بلوچستان میں اس کا اتنا اٹیک یا افیکٹ نہیں ہوا، لیکن چونکہ یہ ایک مسلسل ایک وہ چل رہا ہے، ابھی تھرڈ اس کا وہ لہر آ گئی ہے، تو ظاہری بات ہے SOPs پہ ہم کو عمل کرنا چاہیے، اور جتنا سسٹم ہے حکومت کو بھی اور عوام کو دونوں کو سوچنا چاہیے، اور ہمیں جتنا ہو سکے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ سر آپ ذمہ دارہ کر رہے ہیں یہاں پہ، ماشاءاللہ آپ کی جمالی فیملی کی بہت ساری زمینیں ہیں، بہت سارے آپ یہاں پہ لینڈ لارڈ ہیں، اس نظر سے یہاں پہ جتنے مسائلز ہیں، کیا بلوچستان کی حکومت، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب، ہمارے جتنے بھی منسٹرز ہیں، کیا اس کو کوئی اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں یا مسائل کا کوئی تدارک بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، PTI اور باپ کی حکومت ہے جی،
मैं समझता हूँ ये तीसरा साल है, अभी तक एज सच ज़मींदार के लिए कोई सपोर्ट चीज़ नहीं आई है। तो मैं अब जैसे अभी आपको एक बता दूं कि लेट डिसीजन लेना वो भी इफ़ेक्ट कर रहा है ज़मींदार तबके को, और उन पे फिर अमल ना होना वो फिर अलग एक इफ़ेक्ट कर रहा है, और चीज़ें इनपुट्स वगैरह भी महंगी होती जा रही हैं। दूसरा ये है कि अगर अभी भी ख़ान साहब और सूबाई हुकूमत मिलकर 60 to 70% जो ज़राअत से तबका है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे कैसे मामलात चलेंगे। उन्होंने ख़ुद अपने जो है इलेक्शन कैंपेन या उससे पहले वायदे किए थे, अब वो यू टर्न के बड़े मशहूर हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि अगर इस तबके को जितना सपोर्ट करेंगे उतनी मुल्क की माशियात, इकनॉमिक सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी। कल सक्कर में खान साहब ने जलसा भी किया, आपने देखा, बड़े पैकेज का ऐलान भी किया, लेकिन है कि क्या इस पैकेज का जो ऐलान हुआ गया वो पूरा भी होगा? सर मैं कहता हूँ कि सिर्फ अगर ये सक्खर टू हैदराबाद और कराची एक्सप्रेस वे भी काम शुरू करा जाते हैं खान साहब, तो ये भी मैं समझता हूँ खान साहब की एक अच्छी चीज़ रहेगी। बाकी जहाँ तक दूसरी बात है, वो हमारे तो बलूचिस्तान में आए ही 2-3 दफ़ा हैं, 3 साल में शायद 4 या 5 दफ़ा आए हैं, वो भी कोयटा से होके, या शायद एक दफ़ा गवादर गए हैं मेरे ख़्याल में, या तुर्बत। तो इतना बड़ा सूबा है हमारा, और वो सूबाई हुकूमत को भी सपोर्ट उनको करना चाहिए, और सिंध गवर्नमेंट के साथ भी बैठ के सिंध के इश्यूज़ हैं, जो NFC अवार्ड है, जो दूसरे हैं, उस पे हर सूबे का हक़ है, वो चीज़ों को अमल होना चाहिए। सर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा वाज़ेह है कि जितने भी हम लोगों ने आवाम की राय के उन्वान से प्रोग्राम्स किए हैं, मार्केट्स में जाके सर मुख्तलिफ लोगों की राय ली है, पूरे पाकिस्तान की ओवरहाल में बात कर रहा हूँ, ये मैं किसी सूबे की बात नहीं कर रहा, कि जब से PTI की हुकूमत में आई है एक महंगाई का तूफ़ान सा सर बरपा है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या वाकई ठीक था कि या नून लीग की हुकूमत अच्छी थी? लोग तो अब नून लीग की हुकूमत को बड़े अप्रिशिएट करते हैं, तो कहते हैं जी ठीक है उन्होंने करप्शन की है, कुछ खाया है, कुछ लगाया भी है। ये एक आम मकूला हर आदमी के मुंह पे ज़बान पे चढ़ा हुआ है सर। देखें जी, मैं समझता हूँ जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और आम आदमी तक चीज़ें की हैं तो वो पीपल्स पार्टी ने की हैं, सही। लेकिन हम अपनी चीज़ों को उतना कैश नहीं करा सके, उतना मीडिया पे पीपल्स पार्टी नहीं लेके आई। जो पार्लियामेंट के थ्रू 18वीं तरमीम हुई, सूबों को खुद मुख्तारी मिली, और जो पार्लियामेंट को इज़्ज़त मिली, जो 58(2)B वाला जो सिस्टम था वो ख़त्म किया गया, तो ये बुनियादी चीज़ें थी। हाँ, मियाँ नवाज़ शरीफ ने भी जो मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट किए वो माननी चाहिए, वो बातचीत बिल्कुल उनकी अच्छी है। जहाँ तक खान साहब की बात है, खान साहब तो ना किसी मेगा में प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, ना दूसरे कामों में आ रहे हैं, तो अब उनका ये तीसरा साल कंप्लीट हो रहा है, तो उनके पास टाइम पीरियड बड़ा कम है। बाकी मैं समझता हूँ कि जहाँ तक महंगाई है वो माशाल्लाह मैं समझता हूँ PTI हुकूमत में अब रिश्वत डबल हो गई है, बाकी मुझे कोई पता नहीं। इजाफा हो गया। हाँ, करप्शन में इजाफा हो गया है, और जो चोरों पे, डाकुओं पे या लीडरों पे या जो भी था, वो चीज़ को रिज़ल्ट अभी तक नहीं आई, तो आवाम उससे भी मायूस हो गई है। और इनका कोई एक रिलीफ दे देना किसी चीज़ पे भी, तो आवाम कहे कि चलो ठीक है, और चीज़ों को आसान बनाएं, टैक्सेस को आसान बनाएं, पॉलिसीज़ को आसान बनाएं। और मैं समझता हूँ खान साहब हाथ बांधता हूँ, अगर आपसे नहीं होती तो ये रिश्वत को ही बहाल रखें, हम डबल रिश्वत भर रहे हैं अभी, बस आपके लिए पैगाम हम यही दे सकते हैं। लेकिन PTI का तो मोटो था करप्शन का खात्मा। हाँ जी, वो करप्शन मेरे ख्याल में वो उनके लीडरान ही पूरे कर जाएंगे, कोई रिज़ल्ट दें। लेकिन अभी हम आप इस वक्त जो मैं आपको हकीकत बताऊं, हम डबल रिश्वत दे रहे हैं, क्योंकि अभी ब्यूरोक्रेसी को भी एतबार नहीं रहा, ठेकेदारों को भी एतबार नहीं रहा, तो वो जो भी काम होता है अभी डबल होके होता है जी। सर मीर ताज मोहम्मद जमाली साहब का जिक्र भी साथ साथ मैं करता जाऊँ, यहाँ पे आपके साहब वज़ीर आला थे, उनके अदवार में भी बहुत सारे अच्छे काम हुए, बलूचिस्तान की खिदमत हुई। लेकिन जितने भी हम 3 सूबे के अगेंस्ट देख लें, बलूचिस्तान हमेशा ही पसमानदा इलाका रहा। यहाँ पे जितनी मादनियात है, जितनी यहाँ पे सहूलियात बलूचिस्तान के लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, उसकी वजह सर आपकी नज़र में क्या आती है? देखें जी, मैं तो वालिद साहब का फ़ख्र से बात करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान के हर ज़िले में उनकी वाहिद वज़ीर आला हैं
जिनके हर ज़िले में कोई ना कोई तख्ती लगी हुई है डेवलपमेंट की। तरक्याती कामों की। दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी उनकी कि उन्होंने नेशनलिस्ट को पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें लाए, फिर काबीना को ऑल एंड ऑल किया, फिर उन्होंने बाय रोड ट्रैवल किया, हर इलाके में खुद गए, आवाम के साथ ताल्लुक़ बढ़ाया, आवाम के इश्यूज़ को देखा, और साथ साथ जो कोलिशन गवर्नमेंट का सेटअप उन्होंने दिया वो आज तक वही चल रहा है, नेशनलिस्ट पार्टीज़ वही चल रही हैं। उसके बाद जो NFC अवार्ड और जो वाटर अकॉर्ड हुआ वो भी उन्हीं के ही होते हुए हुआ। तो मैं समझता हूँ जो सूबे के बुनियादी इश्यूज़ थे वो चीज़ें उन्होंने कवर की, पब्लिक डीलिंग को भी, और उनको दरवेश और सखी के नाम से पुकारा जाता था, और माशाल्लाह आप जो लोगों के दिलों पे राज करे, तो ये वाहिद चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान के हैं। तो आप जहाँ भी जाएंगे कोयटा में, बलूचिस्तान में, अगर जहाँ भी ज़िक्र करेंगे तो वो अच्छे नामों से, अच्छी चीज़ों से उनका ज़िक्र किया जाएगा। बलूचिस्तान में हमेशा दहशतगर्दी का राज रहा है, कोई इसमें तरक्याती कामों में सर कोई फ़र्क पड़ता है? राज नहीं रहा जी, इख्तलाफ राय है, उसको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल, अब जैसे CPEC आ गया तो इसमें इंटरनेशनल फोर्सेस हैं जो वो नहीं चाहती कि बलूचिस्तान बढ़े या पाकिस्तान बढ़े। तो उसमें यह है कि इस्लामाबाद को भी ज़रा सोचना चाहिए कि बलूचिस्तान को ज़रा रिस्पेक्ट दें। अब जब खान साहब इतनी बड़ी बातें करते वो 4 दफ़ा भी बलूचिस्तान नहीं आए, उनको तो बलूचिस्तान के ज़िलों का भी नहीं पता होगा, बलूचिस्तान के ज़बानों का भी नहीं पता होगा। तो ये उन्होंने सादक संजरानी साहब को बड़ी अच्छी देखें जी, सादक संजरानी साहब अल्लाह खुश रखे, मोतबर जो भी हैं अपनी जगह पर, ये कोई मसले का हल नहीं है। ये जो तरीक़ेकार है ना, इन्होंने और शक व शुबात बढ़ा दी हैं। तो इस किस्म की लीडरशिप भी लोगों को नहीं चाहिए जिसकी बुनियाद ना हो। तो ये मैं सब के लिए कह रहा हूँ कि आप ऐसे लोग लाएं जो पब्लिक से भी बुनियाद रखते हों, कोई फैमिली बैकग्राउंड का भी हो, और उनमें कोई विज़न भी हो, कोई काम करने का हो, कोई फोर्स ही। देखें कि आज पाकिस्तान जो है रीजनल, उसमें हम कहाँ पहुँचे हैं, नेशनल हमारा क्या है और इंटरनेशनली क्या चीज़ें हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान का किरदार बड़ा अहम है। जितना बलूचिस्तान से प्यार करेंगे, तवज्जो देंगे, इज़्ज़त देंगे, बलूचिस्तान उसका ज़्यादा पे करेगा। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये थे मीर चंगेज़ खान जमाली साहब जो कि फेडरल मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के दौर में रहे थे। बड़ी अच्छी जो है ना इन्होंने बातें की, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के हवाले से। इनका जो मीर ताज मोहम्मद जमाली साहब थे जो कि वज़ीर आला बलूचिस्तान रहे हैं, उनकी खिदमात के हवाले से भी इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, और ख़ास तौर पे कहा कि कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पे उनकी तख्ती नहीं लगी होगी, ख़ास तौर पर डेवलपमेंट के काम में, तरक्याती कामों में। लेकिन खान साहब ने जो वादे किए थे अभी तक जो है ना वो वादे वैसे के वैसे ही हैं। कोई वादा जो है ना वो वफ़ा नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। और इन 3 सालों में बकौल जमाली साहब के 2 या 3 दफ़ा जो है ना आया हूँ। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये हज़ारा बिरादरी के लोग शहीद हुए थे, मारे गए थे, तो उन दिनों में भी खान साहब ने ज़िद लगा के जो है ना इनको तदफीन करवाया जाए, फिर आऊँगा मैं। ये सारे सिलसिले इसी तरह चलते रहे। लेकिन मेरी खान साहब से भी गुजारिश है, क्योंकि इस वक्त वो वज़ीर आज़म है, कि बलूचिस्तान को जो मरात मिलनी चाहिए वो दें। इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान पाकिस्तान की तरक्की में एक नुमाया करार अदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं ख़ास तौर पे मीर चंगेज़ खान जमाली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने कीमती वक्त से मुझ नाचीज़ को जो है ना थोड़ा सा टाइम बख्शा। कैमरामैन साजिद अली के साथ डॉक्टर नवीद, 72 न्यूज़।